Good morning, all of you. I am Neha Sharma and today is 24th September. This is the last part of our noun. अभी हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस की. So, this type of noun it shows the possession कि वो जो चीज़ है वो किसको बिलोंग करती है. ठीक है. A noun may be used as a subject or object of a verb or to show possession. So we can say that the noun is in nominative, objective or possessive case. Possessive means what? किसी का possession होना उसके ऊपर, the one who to whom that thing belongs. ठीक है. For an example, when a noun is used as a subject of a verb, it is said to be nominative case. जब भी कोई भी नाउन हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का नाम या फिर कलेक्टिव कुछ हम कहते हैं किसी चीज़ को. ठीक है. या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है. अगर वो किसी वर्ब के लिए, ठीक है, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, देन इट विल बी द नॉमिनेटिव केस. जैसे वरुण मेट अ डेफ बैगर. हु मेट द डेफ बैगर? वरुण. ठीक है. सोनिया बॉट अ गोल्ड रिंग. Varun and Sonia are subjects of the verb met and bought. They are therefore said to be in the nominative case. और हम इसको find out करने के लिए, to find out whether it is a nominative case or not, we have to answer who or what. अब देखो यहाँ पर we will ask the question who does Varun met. तो the answer will be Varun met a deaf beggar. आ गया आंसर इसमें. What does Sonia buy? What did Sonia buy? We will ask what did Sonia buy? Then the answer will come Sonia bought a gold ring. Fine. To find out the subject of a verb, put who or what before it. आगे ना जो भी मतलब जैसे if he met someone, अगर कोई और किसी इंसान की बात हो रही है तो वहाँ पे who लगा देंगे. We will ask question by who. And if it is related to any non-living thing, then we will use what. Objective or accusative case. Accusative case. When a noun is used as the object of a verb, it is said to be objective or accusative case. ठीक है. Whenever a noun which is used as the object, यानी कि जो पीछे वाला है, मैंने आपको वो वर्ड का सिंटैक्स बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले किसी भी वर्ड में उसका लाइन के अंदर पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आती है उसकी इज एम आर जिसको हम कहते हैं, है ना. इज एम आर वॉज वर, है ना, जो भी है, दे कम. फिर वर्ब आती है या फिर एडजेक्टिव आता है, जो भी आप यूज करना चाहते हो. देन लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट. दिस इज हाउ एनी सेंटेंस हैज बीन मेड. तो जो हमने नॉमिनेटिव केस वाला पढ़ा था उसमें हमने इसको इम्पोर्टेंस दी थी. वाई? बिकॉज वी हैव सीन द वर्ब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट. Now we will see verb in the context of object in the objective case or the accusative case. When a noun is used as object of a verb, it is said to be objective or accusative. For an example, same example उन्होंने ले लिया. अब यहाँ पर किया क्या उन्होंने, इसको इम्पोर्टेंस दी है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को उन्होंने इम्पोर्टेंस देके बोला कि इट इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक है. a noun which is used as the object of the verb, last वाला. ठीक है. सेम वी विल आस्क क्वेश्चंस हियर. यहाँ पे भी हम what या whom से क्वेश्चन पूछेंगे. यहाँ पर हमने what या who से पूछा था, अब यहाँ पे whom या what से पूछेंगे. सो हियर सोनिया बॉट अ गोल्ड रिंग. सोनिया बॉट द गोल्ड रिंग. by whom the gold ring was bought. तो वहां पर आ जाएगा
Sonia bought a gold ring. Bhairavi paints a wall. A wall is painted by whom? Whom आ गया ना इधर whom. ठीक है, तो भैरवी. ठीक है, ये ऐसे आंसर आ जाएगा इसमें. The answer will come like this. We have to change the question according to the sentence. Possessive case. When a noun shows possession or indicates the owner of something, it is said to be possessive case. अब possession शो करने के लिए कि that the noun shows possession, कि the thing or someone's thing belong to them, तो यहाँ पर हम apostrophe लगाएंगे. apostrophe ये s करके ऐसे लगाते हैं इसके लास्ट में, ताकि possession बता पाएं. दिशा लॉस्ट ऑफ फ्रेंड्स USB केबल. दिशा ने USB केबल जो थी वो घुमा दी, लेकिन किसकी थी वो? इट बिलोंग टू हर फ्रेंड्स. ओके, दिस इज राम्स मोबाइल कवर. देयर इज अ मोबाइल कवर बट द मोबाइल कवर बिलोंग्स टू राम. ओके, friends and his are in the possessive case because each donates the possessor of the owner of something. ठीक है, उनका रिलेशनशिप शो कर रहा है कि दैट थिंग इज बिलोंग टू समवन. एपोस्ट्रोफी यूज करते मैंने आपको पहले ही बता दिया. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. टू शो अ रिलेशनशिप, द किंग्स सन. किसका बेटा? किंग का बेटा. ठीक है. टू शो अ क्वालिटी, लिटिल गर्ल्स काइंडनेस. I was amazed to see the little girl's kindness. ठीक है, किसकी काइंडनेस है? द काइंडनेस. देखो अब यहाँ पे काइंडनेस इज व्हाट? काइंडनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. फाइन. अब यहाँ पर एक कोई भी चीज का पार्ट है. अब एक यहाँ पर हम शर्ट के बटन का पार्ट देखें. सॉरी, यस, द बटन इज अ पार्ट ऑफ अ शर्ट. सो द शर्ट्स बटन, the needle, the clock's needle, है ना? The clock's needle. TV's remote. Fine. ये कुछ examples हो गए. To show descriptive aspect, children's footwear. ठीक है. Students books. तो ऐसा आप करके कुछ भी पोजीशन में लगाने के लिए सबसे पहले आपको शो करना पड़ेगा apostrophe s. उसके बाद ही आप कर सकते हैं. अपॉस्ट्रोफी के बिना जो है वो आपका पोजीशन शो नहीं होगा. फॉर्मेटिव. अब देयर आर सम एग्जांपल्स, लेट्स सी. विद सिंगुलर नाउन्स वी यूज एस. द पैलेस ऑफ द किंग, किंग्स पैलेस. देखो हम बिना देखे करते हैं. फाइन. द कार ऑफ मिस्टर राय, मिस्टर राय's कार. सही है. देखो, विद सिंगुलर नाउन एंडिंग विद एस we use both s and s. Mr. Das car is new. Mr. Das car is new. अब देखो एक चीज है, जिस भी नाउन में पीछे किंग होता है, कि सॉरी s होता है, जैसे लास्ट जो है उसका एंड जो होता है s से होता है, तो आप ऐसे भी अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं और ऐसे भी अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, आई वुड लाइक टू टेल यू नाइस वन. अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा है. यहाँ देखो, जैसे एक इंसान है, उसका नाम है हैंक्स. ठीक है, एक हॉलीवुड एक्टर है, उसका नाम लिया मैंने हैंक्स. तो मैं हैंक्स ऐसे भी लिख सकती हूँ, और क्योंकि लास्ट में ना एस आ रहा है इसके नाम के पीछे. ठीक है. सो आई कैन राइट एपोस्ट्रोफी लाइक दिस, और आई कैन राइट एपोस्ट्रोफी लाइक दिस ऑल्सो. सॉरी, 1 मिनट, दैट्स अ मिस्टेक. लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. आजकल जो हम रिसेंटली यूज करते हैं, तो पीपल यूज लाइक दिस. जो एस लास्ट में होता है उसी के आगे ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. इट्स नॉट रॉन्ग. कहीं पर भी आप अगर ऐसे देखो ना कि किसी का नाम ऐसे, जैसे मिस्टर दास है, तो उनके नाम के आगे ही एस आ रहा है लास्ट में, तो
इधर एक और एस लगा करके एपोस्ट्रोफी लगाओ, फिर एक और एस लगाओ, या फिर सिंपल एस के आगे भी एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो. इट्स वेरी इजी. नाउ द यूनिफॉर्म ऑफ द नर्सेज यूनिफॉर्म्स. यस, द क्लब मेंट फॉर द, देखो यहाँ पर भी एस था ना लास्ट में, नर्सेज के लास्ट में देखो, तो उन्होंने एस यहाँ लगा दिया. ठीक है, तो इट्स राइट. द क्लब मेंट फॉर द ऑफिसर्स. द ऑफिसर्स, देखो क्लब किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए, तो ऑफिसर्स क्लब. अब मैं इतनी लंबी लाइन लिखूँ इससे अच्छा तो ऑफिसर्स क्लब लिखा ना मैंने. विथ प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस वी यूज एस. ठीक है, जहाँ पर भी एस पे नहीं होता फिर भी हम वहाँ पर एस लगा देते. कौन सा? द बुक ऑफ चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस बुक. यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया, सॉरी, देयर इज एन एक्सेप्शन कि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है लास्ट में, बट स्टिल उन्होंने प्लूरल नाउन के आगे, जहाँ पर भी प्लूरल नाउन होगा, जैसे ये रहा था नर्सेज, एक होती है तो नर्स होती है ना, दो हो गए तो नर्सेज हो गई, दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर उन्होंने एपोस्ट्रोफी लगा दिया लास्ट में. वैसे ही जहाँ पर भी आपको प्लूरल मिलेगा तो प्लूरल में आपको ऐसे एस नहीं लगाना है उस नाम के, हाँ सॉरी यस, ऐसे एस नहीं लगाना है, ऐसी एस, आपको ऐसे एस लगाना है. फाइन. द कॉलेज फॉर मैन, मेंस कॉलेज. वाई? बिकॉज MEN होता तो वन मैन, बट हियर इट इज MEN प्लूरल, सो MEN के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है. वी यूज एपोस्ट्रोफेस और ऐसा, मतलब सिंपल ऐसा और ऐसा. ठीक है, ओनली विद लिविंग बींग्स. एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन कैसे हो सकता है? दिस इज माई पेन्स रिमोट. पेन का रिमोट कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं कुछ भी एस और एस की करूं तो वो नहीं होगा ना. अगर जबकि वो उसका पार्ट होना चाहिए, जैसे माई पेंसिल्स निब, तब ठीक है, क्योंकि निब जो है वो पेंसिल का पार्ट है तो हम कर सकते हैं उसको, लेकिन रिमोट जो है वो पेन का पार्ट नहीं है ना, सो आई कैन नॉट यूज दैट थिंग देयर. ओके. डोंट से द चेयर्स लेग, द पिक्चर्स फ्रेम. चेयर लेग कहते हैं, पिक्चर फ्रेम कहते हैं, लेग ऑफ द चेयर कह सकते हैं, या द फ्रेम ऑफ द पिक्चर कह सकते हैं. समटाइम्स वी पर्सोनिफाई एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रीट इज एज अ लिविंग बींग. इन दैट केस वी कैन यूज एन एपोस्ट्रोफी विद इट. ठीक है, पर्सोनिफाई का मतलब एक ये पर्सोनिफिकेशन होता है. आप बड़े होंगे तो आप फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जैसे अलंकार होता है ना हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में होता है फिगर ऑफ स्पीच. आप पढ़ते भी होंगे पोएम्स में कि ना जो पोएट होता है वो अपनी किसी नॉन लिविंग थिंग को है ना एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब ट्रीट करके उससे मतलब ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कोई लिविंग थिंग हो. उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो लिविंग है. ठीक है, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, ये एक अपवाद यहाँ पे ये रहेगा कि जब भी अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की जगह की तरह ट्रीट कर रहे हैं तब ठीक है, वरना तो हम उस पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं. जैसे इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी. हिज स्कूल्स प्रोग्रेस, उसके स्कूल की प्रोग्रेस. ड्यूटी इज कॉल्ड, ड्यूटी इज कॉल्ड मतलब आपको अपने काम पर जाना है, ड्यूटी इज कॉल्ड. अब ड्यूटी आपको बुलाई थोड़ी रही है, ड्यूटी कह रही है क्या फोन करके आ जाओ आप, नहीं ना, बट यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई कर दिया कि भाई मुझे काम पर जाना है. हिज स्कूल्स प्रोग्रेस. अब स्कूल क्या है? स्कूल कोई बच्चा है? नहीं, स्कूल इज नॉन लिविंग थिंग, एक बिल्डिंग है भाई, वो एक इंस्टीट्यूशन है. तो यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया? स्कूल्स प्रोसेस. पी यूज अपोस्ट्रोफी विद नाउन्स डिनोटिंग स्पेस, टाइम एंड वेट. ठीक है, उसमें भी हम अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं. अ वीक स्टे, कहीं पे भी होटल में जाते पूछते ना कि कितना टाइम आप रुकोगे, तो अ वीक स्टे मतलब हम एक पूरा वीक रुकेंगे. अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर का की लंबाई. पूछते ना आपको कितना चाहिए ये क्लॉथ पीस, तो हम कहेंगे अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर का चाहिए. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के, और ये हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम ये लास्ट 2 एक्सरसाइजेज बची है, आई विल डू इट एंड सेंड इट इन योर ग्रुप. टिल देन टेक केयर.
ध्यान रखो अपना एंड बी सेफ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.